إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون۔ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، یہ دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی نماز میں نہیں پڑھی۔ پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، یہ نماز کی دعا نہیں ہے۔ لائیے کوئی عالم، لائیے بٹھائیے میرے سامنے، زہر کا پیالہ پی لیں گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ثبوت نہیں دے سکیں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں یہ دعا پڑھی ہو۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ النبی الکریم الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ آج کل ایک مسئلہ بڑا مارکۃ الآراء بنا ہوا ہے۔ بعض لوگ ٹی وی پہ بیٹھ کے اور کچھ جو ہیں وہ اپنے سوشل میڈیا کے ذریعے مسلمانوں کو یہ دھوکہ دے رہے ہیں کہ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ یہ جو دعا ہے یہ نماز کے اندر پڑھنا ثابت ہی نہیں، لہٰذا یہ جائز ہی نہیں ہے۔ تو جب جائز ہی نہیں ہے تو ان کا ساتھ یہ بھی عقیدہ ہے کہ کل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، ہر نئی چیز جو ہے وہ گمراہی ہوتی ہے اور ہر گمراہی جو ہے وہ جہنم میں لے جانے والی ہے۔ تو ثابت یہ کیا کہ چونکہ یہ نبی پاک علیہ السلام سے ثابت نہیں، صحابہ سے ثابت نہیں، اور پھر یہ بدعت ہے تو بدعت گمراہی ہے اور گمراہی جہنم میں لے جائے گی، لہذا یہ دعا پڑھنے والا جو ہے وہ بدعتی ہے اور جہنم میں جانے والا ہے۔ جبکہ ہمارے نزدیک میں اس کا جواب جو ہے وہ چند وجوہ سے ریکارڈ کرواؤں گا۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ نبی کائنات جانے دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صرف ایک ہی دعا نہیں، درود شریف کے بعد بلکہ بے شمار دعائیں مانگی ہیں۔ جس طرح بخاری شریف کے اندر حدیث نمبر ہے 832، نبی پاک علیہ السلام سے یہ بھی دعا منقول ہے، آپ نے دعا کی اللہم انی اعوذ بک من العذاب القبر و اعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال و اعوذ بک من فتنۃ المحیا و فتنۃ الممات اللہم انی اعوذ بک من المأثم و مغرم۔ تو یہ بھی دعا نبی پاک علیہ السلام سے ثابت ہے۔ اور ایک اور دعا ہے جو نبی پاک علیہ السلام نے ایک صحابی کو سکھائی، یہ بخاری شریف کی حدیث نمبر 834 ہے۔ ارشاد فرمایا کہ جب تم تشہد پڑھو تو پھر یہ دعا کیا کرو اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم۔ یہ بھی دعا سکھائی۔ لیکن نبی پاک علیہ السلام نے تشہد کے بعد کسی خاص دعا کے پڑھنے کی تلقین نہیں کی کہ یہ دعا پڑھا کرو، حتیٰ کہ صحابہ کرام وہ دعائیں بھی پڑھا کرتے جو بالکل سرے سے نبی پاک علیہ السلام کی تعلیم بھی نہیں ہوتی تھی۔ مثلا یہ میرے پاس مصنف ابن ابی شیبہ ہے، اس کے اندر حضرت سعد بن ابی وقاص کی یہ دعا منقول ہے۔ یہ مصنف ابن ابی شیبہ ہے، جلد 1 ہے اور صفحہ ہے 551، کتاب الصلاۃ ہے۔ اس کے اندر ہے ما یقال بعد التشہد مما رخص فیہ۔ حضرت امام ابو بکر ابن ابی شیبہ جو حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ کے شیخ ہیں، استاد ہیں، وہ کہتے ہیں تشہد کے بعد کون کون سے کلمات کہے جا سکتے ہیں، کس کس چیز کی رخصت ہے، تو اس میں وہ حضرت سعد بن نبی وقاص سے یہ دعا منقول لے کر آتے ہیں۔ حدثنا غندر عن شعبۃ عن زیاد بن فیاض قال سمعت مصعب بن سعد یحدث عن سعد انہ کان اذا تشہد، کہ جب وہ تشہد ادا کرتے فقالت، وہ کہتے، اب یہ دعا ہے اور یہ دعا نبی پاک علیہ السلام سے منقول نہیں ہے کہ حضور نے پڑھی ہو یا حضور نے تعلیم کی ہو، نہ یہ دعا حضور نے سکھائی نہ حضور نے مانگی، لیکن صحابی اپنی طرف سے مانگ رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز کے اندر بندہ ہر قسم کی دعا کر سکتا ہے، یہ شریعت کی طرف سے اجازت ہے۔ تو جب ہر قسم کی دعا کرنا یہ شریعت کے اندر یہ ثابت ہے، تو رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، یہ تو دعا ہے بھی قرآنی۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا ہے، انہوں نے یہ دعا کی ہے رب اجعلنی مقیم الصلاۃ والی، اور یہ قرآنی دعا ہے۔ اور آگے جا کے میں ثابت کروں گا کہ سب دعاؤں سے بہترین دعائیں قرآن والی دعائیں ہیں۔ اور نبی پاک علیہ السلام نے جب تشہد کے بعد کسی قسم کے خاص دعا کی پابندی لگائی نہیں، اور حضرت سعد وہ دعا کر رہے ہیں جو نہ حضور نے مانگی نہ حضور نے بتائی۔ اور حضرت سعد کیا کہہ رہے ہیں؟ سبحان اللہ ملء السماوات وملء الارض وما بینہن وما تحت الثری والحمد للہ ملء السماوات وملء الارض وما بینہن وما تحت الثری واللہ اکبر ملء السماوات وملء الارض وما بینہن وما تحت الثری۔ قال شعبۃ لا ادری اللہ اکبر قبل اب الحمد للہ والحمد للہ حمدا طیبا مبارکا فیہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد
वहुव अला कुल्लि शैइन कदीर अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका मिनल खैरि कुल्लिही सुम्मा युसल्लिमु। फिर हजरत साद बिन नबी वक्कास सलाम फेरते थे, तशहुद के बाद ये दुआ मांगते जो मैंने अभी पढ़ी, फिर उसके बाद सुम्मा युसल्लिमु व सलाम फेरते थे। तो ये दुआ जो हजरत साद मांग रहे हैं, ना नबी पाक अलैहिस्सलाम ने ये दुआ मांगी, ना नबी पाक अलैहिस्सलाम ने ये दुआ सिखाई, हजरत साद ये पढ़ रहे हैं। तो पता क्या चला कि नबी पाक अलैहिस्सलाम ने तशहुद के बाद कौन सी दुआ पढ़नी है इस किस्म की कोई पाबंदी नहीं लगाई। जब पाबंदी लगाई नहीं, बंदा हर किस्म की दुआ मांग सकता है, तो ऐसे सोशल मीडिया पे बैठे हुए मुफ्ती नाम नहाद जो डॉक्टर मौलाना और इंजीनियर कहलाने वाले, वो किस तरह पाबंदी लगा सकते हैं और ये कह सकते हैं, फतवा दे सकते हैं कि रब्बी जालनी पढ़ने से नमाज जो है ये साबित ही नहीं है, ये दुआ पढ़ना और ऐसी नमाज पढ़ने वाला वो बिदअत ही है। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। आके करीम जाने दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम ने बिल्कुल खुली छुट्टी दी कि अगर जब तुम तशहुद पढ़ लो तो किस किस्म की दुआ करनी है। ये बुखारी शरीफ है, हदीस नंबर 835। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया तशहुद पढ़ने के बाद सुम्मा यतखय्यरु मिनद दुआ आजबहु इलैहि फयदऊ, फिर इसके बाद दुआ का इख्तियार है। यतखय्यरु मिनद दुआ, दुआ में से किसी भी दुआ का इख्तियार है तुझे। हुजूर ने पाबंदी नहीं लगाई, नमाजी के ऊपर छोड़ दिया, हर किस्म की तू दुआ कर सकता है। आजबहु इलैहि, जो उसे सबसे ज्यादा पसंद है। अगर अच्छा मैं इनसे पूछना चाहता हूं जो रब्बी जअलनी मुकीम सलात पर फतवा लगाते हैं, मुझे ये दुआ इब्राहिमी सबसे ज्यादा पसंद है, क्यों? इसमें अपने लिए भी बख्शिश है, वालिदैन के लिए बख्शिश है, कुल मोमिनीन मोमिनात के लिए मैं बख्शिश की दुआ कर रहा हूं, मुझे ये सबसे ज्यादा पसंद है। और हुजूर फरमाते हैं आजबहु इलैहि, जो तुझे ज्यादा पसंद है वो मांग। तो जब हुजूर ने मुझे छुट्टी दे दी और अपनी उम्मत को छुट्टी दे दी कि जो दिल करता है वो दुआएं करो, फयदऊ, वो दुआ करो, तो फिर कोई मौलवी किस तरह पाबंदी लगा सकता है कि यह नमाज वाली दुआ ही नहीं है। तो जो हज़रत साद बिन नबी वक्कास पढ़ते थे वो नमाज वाली दुआ हुई कि नहीं हुई? वो साबित करिए कि नबी पाक अलैहिस्सलाम ने तालीम दी हो या हुजूर ने वो पढ़ी हो। तो जब हुजूर ने वो दुआ पढ़ी नहीं और आगे किसी को सिखाई नहीं, हज़रत साद बिन नबी वक्कास का अपनी तरफ से पढ़ना और फिर हुजूर का ये कहना कि सुम्मा यतखय्यरु मिनद दुआ आजबहु इलैहि फयदऊ, तो इस बात की ये दलील है कि नमाजी नमाज के अंदर जिस किस्म की भी दुआ करे, हर किस्म की दुआ पढ़ना जायज है। और सबसे बेहतरीन दुआ वो है जो कुरान के अंदर नकल हुई, और जुबान भी किसकी? हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जुबान अक़दस से ये जुमले अदा हुए, तो क्या वो सबसे ज्यादा पसंदीदा दुआ नहीं होगी? अब रहा क्या नमाज के अंदर ये रब्बी जअलनी मुकीमस सलाति व मिन ज़ुर्रिय्यती रब्बना व तक़ब्बल दुआ, ये दुआ हम पढ़ सकते हैं कि नहीं? तो सबसे पहले बात याद रखें कि ये दुआ खुद नमाज के अंदर आई है। और किसने पढ़ी? हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने। ये सूरह इब्राहिम है, मुलाहिजा फरमाए अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में हजरत सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम दुआ कर रहे हैं। ये सूरह इब्राहिम है और रकू नंबर है 6। वइज़ क़ाला इब्राहिम रब्बि जअल हाज़ल बलद आमिनन वजनुबनी, यहां से ये दुआ शुरू होती है, वजनुबनी व बनिया अन नअबुदल असनाम। यहां से दुआ शुरू होते होते अब आयत नंबर है 39। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी वहब ली अलल किबर इस्माईल व इसहाका इन्न रब्बी लसमीउद दुआ रब्बि जअलनी मुकीमस सलाति व मिन ज़ुर्रिय्यती रब्बना व तक़ब्बल दुआ रब्बना फ़िल्ली व लिवालिदैया व लिल मुमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब। तो ये दुआ हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने मांगी है। और अब ये मुसन्निफ इब्न अबी शैबा मेरे हाथ में, इमाम बुखारी के उस्ताद और शेख, इन्होंने पूरा बाब बांधा। लिखते हैं मन काना यस्तहिब्बु अन यदउआ फिल फरीदति बिमा फिल कुरान, कि जिन हजरात के नजदीक फर्ज नमाज में कुरानी दुआएं पढ़ना मुस्तहब हैं। अब चूंकि ये रब्बी जअलनी कुरान की दुआ है और वो ऐसे अब मशाइख का और शयूख का नाम लिखेंगे कि जो पसंद करते हैं नमाज के अंदर कुरान वाली दुआ मांगी जाए। उनमें कौन है? ये हदीस नंबर है 3051 अन इब्राहिम, ये हजरत इब्राहिम नखई हैं, अजीम तरीन ताबाई। सन 47 हिजरी में इनकी विलादत हुई और सन 96 हिजरी में इनका इंतकाल हुआ। इब्राहिम नखई ताबाई। अब ये इनका फतवा क्या? ये इमाम बुखारी के भी शेख हैं, इमाम मुस्लिम के भी शेख हैं, सहा सित्ता के ये शेख हैं। तमाम जितने भी मुहद्दिसीन गुजरे उनके ये उस्तादों के उस्ताद हैं। हजरत इब्राहिम काला, वो कहा करते थे, कान यस्तहिब्बु अन यदउआ फिल मक्तूबति बिदुआइल कुरान। हजरत इब्राहिम नखई इस बात को पसंद फरमाते थे कि फर्ज नमाज में कुरानी दुआएं मांगी जाएं। अब मैं इन मिर्जा साहिब से और वहाबी हजरात से ये पूछना चाहता हूँ, हजरत इब्राहिम जो नमाज के अंदर कुरान वाली दुआएं पढ़ते थे, क्या उनकी नमाजें होगी कि नहीं? फतवा लगाएं कि इमाम बुखारी के शेख की नमाज नहीं होती।
अबू बकर इब्ने अबी शैबा की नमाज नहीं होती, लगाएं फतवा इब्राहिम बिन नखी की तमाम नमाजें बातिल गई। ये ताबी हैं। अगली हदीस, काला समेत ताऊसन यकूलो, ये सदका बिन यसार कहते हैं, समेत ताऊसन यकूलो, मैंने हजरत ताऊस को ये कहते हुए सुना, उदऊ फिल फरीदति बिमा फिल कुरान, फर्ज नमाज में कुरानी दुआएं मांगा करो। अब ये ताऊस कौन है? ये ताऊस बिन किसान हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास के शागिर्द हैं, हजरत उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीका के शागिर्द हैं, हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर सहाबी रसूल के शागिर्द हैं, हजरत सैयदना अबू हुरैरा के शागिर्द हैं, हजरत अब्दुल्ला बिन अमर बिन आस सहाबी रसूल के शागिर्द हैं। और इनकी विलादत 33 हिजरी हजरत सैयदना उस्मान गनी के जमाने खिलाफत में हुई और इनकी वफात 106 हिजरी में हुई। अजीम तरीन ताबी हजरत ताऊस बिन किसान, वो कहते हैं कि फर्ज नमाज में कुरानी दुआएं मांगा करो। बताओ इनकी नमाजें हो गई या नहीं हुई? कहीं इनकी नमाजें बातिल तो नहीं हो गई? फिर आगे, और ये ताऊस वही हैं जिनकी तुम तलाक वाली रवायत जो है वो मुस्लिम शरीफ से पढ़ते हो। ये इमाम मुस्लिम के शियूख में से, हजरत इमाम बुखारी के शियूख में से अजीम तरीन मुहद्दिसीन जिन्होंने अपनी अपनी सहा के अंदर, अपनी अपनी सुनन के अंदर रवायात की, उनके ये शेख और उस्ताद हैं। और ये क्या कहते हैं कि नमाज के अंदर कुरान वाली दुआ मांगा करो। तो रब्बी जालनी मुकीम सलात तो कुरान वाली दुआ है। बताइए हजरत ताऊस की नमाजें हो गई कि नहीं हो गई? इसी तरह हजरत ताऊस का एक और जुमला भी है, हजरत मोहम्मद उनसे हदसना अबू दाऊद अत्तयालसी अनिल हाकम बिन अतिया काला समेत मोहम्मदन, उन्होंने कहा मैंने मोहम्मद को यह कहते हुए सुना, वसोइला अनिद दुआ फिस सलाम, कि उनसे पूछा गया कि नमाज में कौन सी दुआ मांगी जाए। फकाला, तो उन्होंने कहा काना अहब्बु दुआइहिम मा वाफकल कुरान, ये हेम सीगा जो है जमा का है। और ये मोहम्मद बिन यसार साहिब मगाजी ये क्या कहते हैं कि असलाफ को सबसे ज्यादा पसंदीदा दुआएं वो थी जो कुरान के मुवाफिक हों, यानी ये कुरान वाली दुआएं ये ज्यादा पसंदीदा थी। ये कौन कह रहे हैं? मोहम्मद बिन यसार। और ये मोहम्मद बिन यसार कौन है? इन्होंने हजरत अनस साहबी रसूल को देखा हुआ है। ये मेरे पास तहजीब ताजीब है और इसकी जिल्द 6 है। हजरत अनस साहबी रसूल की ये जियारत करने वाले, रआ अनसन व इब्न मुसय्यब व अबा सलमा तबना अब्दुर्रहमान, अबू सलमा बिन अब्दुर्रहमान को इन्होंने देखा, सईद बिन मुसय्यब को देखा, हजरत अनस साहबी रसूल को इन्होंने देखा। तो ये ताबी साहिब मगाजी वो क्या लिखते हैं? वो इस बात को लिखते हैं असलाफ को, यानी सहाबा इकराम, असलाफ से मुराद सहाबा हैं, असलाफ को सबसे ज्यादा जो पसंदीदा दुआएं थी वो कौन थी? वो नमाज वाली दुआएं थी। अच्छा, अब सहाबा जिस दुआ को पसंद करें, ताबईन जिस दुआ को पसंद करें, वो कुरान वाली दुआएं हैं। और तुम कहते हो कि नहीं, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मनकूल ही दुआ नहीं है वो बिदत है, और बिदत जो है वो गुमराही होती है, लिहाजा ये नमाज नहीं होगी। मुझे बताएं, क्या सहाबा की नमाजें बातिल गई? ताबईन की नमाजें बातिल गई? इब्राहिम नखी की सारी नमाजें बातिल गई? हजरत ताऊस की जो सहाबा इकराम के शागिर्द हैं उनकी नमाजें बातिल गई? हजरत मोहम्मद बिन यसार साहिब मगाजी की नमाजें बातिल गई? अब मैं पढ़ता हूँ मुसन्निफ अब्दुल रज़ाक जो इमाम बुखारी के दादा उस्ताद हैं, वो क्या लिखते हैं। ये इन्होंने बाब बांधा है, जल्द 1 है और सफ़ा है 782, बाब तस्लीम 787 से पहले ये बाब तशहुद के बाब में ये लाए हैं कि बाब अल इस्तिग़फ़ार लिल मोमिनीन वल मोमिनात, मोमिन मर्दों और मोमिन ख़वातीन के लिए दुआ मग़फ़िरत करना। अक़वाल ताबईन लिखते हैं, अब्दुल रज़ाक अन इब्न जुरैर क़ाल क़ुल्तु ली अता, मैंने अता से पूछा अस्तग़फ़िरु लिल मोमिनीन वल मोमिनात, क्या मैं मोमिन मर्दों और मोमिन औरतों के लिए इस्तिग़फ़ार करूं? क़ाल नअम, उन्होंने कहा हाँ। क़द अमर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिज़ालिका फ़इन्न ज़ालिकल वाजिबु अलन नास, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इसी का हुक्म दिया और ये वाजिब है तमाम लोगों के ऊपर कि वो नमाज के अंदर मोमिनीन के इस्तिग़फ़ार के लिए दुआ मांगा करें। मुझे बताएं, रब्बना ग़फ़िरली वली वालिदैया वलिल मोमिनीन यौम यक़ूमुल हिसाब, ये मोमिनों के लिए इस्तिग़फ़ार वाली दुआ है या नहीं है? तो जब ये मोमिनों के लिए इस्तिग़फ़ार वाली दुआ है और कद अमर नबी, नबी पाक ने हुक्म दिया है, तो जो इस हुक्म पे अमल करेगा क्या उसकी नमाज नहीं होगी? क़ाल अल्लाहु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्तग़फ़िर लिज़ंबिका वलिल मोमिनीन वल मोमिनात, ये सूरह मोहम्मद की आयत नंबर 19 उन्होंने लिखी कि अल्लाह ताला ने अपने नबी अलैहिस्सलाम से फरमाया था कि प्यारे अपने ज़म और मोमिनात के ज़म के लिए इस्तिग़फ़ार कीजिए। कुल, तो मैंने कहा आफा तादाउज़ आलिका फिल मकतूबात आबादन, क्या मैं हमेशा फर्ज नमाज में इसी बात पे अमल करूं हमेशा? काला ला, उन्होंने कहा नहीं, क्योंकि हुजूर की और भी दुआएं हैं, तो सिर्फ हमेशा इस पे ना कर, और भी दुआएं मांगा कर।
कुल तो फाबे मन तबदाउ बेनफ्से का अम बिल मोमिनीन, तो उन्होंने कहा मुझे ये बताओ मैं इब्तिदा अपने इस्तिगफार से करूं, अपने गुनाहों की माफी से इस्तिगफार करूं, या मोमिनों की इस्तिगफार से जो है वो अपनी दुआ का आगाज करूं? मैं यूं दुआ मांगू कि अल्लाह मुझे बख्श दे और मोमिनों को बख्श दे, यूं मांगू या ये कहूं अल्लाह मोमिनों को बख्श दे और मुझे बख्श दे? अपना नाम मैं पहले लूं या बाद में? ये मैंने पूछा। काला बल बिनफ्सी, तो हजरत अता ने कहा पहले अपनी नफ्स को आगे रख, अल्लाह मुझे बख्श दे। तो रब्बना गफिरली में भी यही है, अल्लाह मुझे बख्श दे, वाली वालिदैया मेरे वालिदैन को बख्श दे, वलिल मोमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब, और क़यामत के दिन सारे मोमिनों को भी बख्श दे। तो वो हजरत अता जो फतवा दिया करते थे, बताओ इनकी नमाजें हुई या नहीं हुई? और फिर आखिर में ये भी बता दूं कि इस इस्तिग़फ़ारिल मोमिनीन का फायदा क्या होगा जब तुम मोमिनों के लिए दुआ करोगे, मोमिनात के लिए दुआ करोगे। तो नबी पाक अलैहिस्सलाम का ये फरमान है, हजरत इमाम अब्दुल रज़्ज़ाक़ लाए अन मामर अन अबान अन अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम क़ाल, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, मा मिन अब्दिन यदउ लिल मोमिनीन वल मोमिनात इल्ला रद्दल्लाहु अलैहि अन कुल्लि मोमिनिन व मोमिनतिन मदा औ हुवा काइनुन इला यौमिल क़यामत बिमिस्लि मा दआ बिही। इरशाद फरमाया नबी पाक अलैहिस्सलाम ने, जो बंदा मोमिन मर्दों और मोमिन खवातीन के लिए दुआ करता है, अल्लाह ताला उसे उस दुआ के मुताबिक बदला देता है जो दुआ उसने मांगी थी, और वो बदला हर मोमिन मर्द और मोमिन औरत की तरफ से होता है जो गुजर चुके हैं और जो क़यामत तक आएंगे। क्या मतलब? इसने तो एक बार कहा था रब्बना फ़िल्ली वली वालिदैया वलिल मोमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब, लेकिन इसके एक बार कहने से चूंकि कुल मोमिनीन मोमिनात के लिए इसने दुआ की, तो हर मोमिन मर्द और हर मोमिना औरत की तरफ से इसको इस दुआ का बदला मिलता है कि करोड़ों अरबों खरबों जो गुजर चुके मौजूद और क़यामत तक आएंगे, उनकी तादाद के बराबर इसके नाम अमाल में वो दुआएं शामिल हो जाती है। इसने एक बार इस्तिग़फ़ार नहीं की, इसने ये करोड़ों अरबों खरबों मरतबा जो है इस्तिग़फ़ार की है, इसके नाम अमाल में लिख दी जाए। तो फायदा हुआ कि नहीं हुआ? लिहाजा नमाज के अंदर रब्बी जअलनी पढ़ना ये ताबईन की सुन्नत है, ये सहाबा इकराम की सुन्नत है, असलाफ़ उम्मत की सुन्नत है। और हुज़ूर ने फरमा दिया सुम्मा यतख़य्यरु मिनद दुआ आजबहु इलैहि फयदउ, फरमाया जो तुझे सबसे ज्यादा दुआ पसंद आती है वो भागा कर। जब हुजूर ने पाबंदी नहीं लगाई, हुजूर जाने दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह मसला उम्मत की मंशा पे छोड़ दिया, तो किसी मौलवी और इंजीनियर के कहने पे उम्मत मुस्लिमा की नमाज़ें को खराब होने का फतवा नहीं दिया जा सकता। हाथु बुरहानकुम इन कुंतुम सादिकीन, लाओ इसके मुकाबले में दलील। जब रसूलुल्लाह ने पाबंदी नहीं लगाई, सहाबा ने पाबंदी नहीं लगाई, ताबईन ने पाबंदी नहीं लगाई, तो ये इंजीनियर और मिर्जा और ये इस किस्म के जो सोशल मीडिया पे आने वाले नाम नेहाद से कालर हैं, और या अवामुन नास को बेवकूफ बनाने वाले, खशखशी दाढ़ी रखने वाले, कम फहम जो मौलवी हैं, वो किस तरह उम्मत मुस्लिमा की नमाजों को तबाह होने का हुक्म दे सकते हैं। अल्लाह ताला इन सब के शर से उम्मत मुस्लिमा को महफूज फरमाए।